Jain friends, today we'll discuss about ACC written examination. The examination will conduct in 4 days. Each day they have different tests for the written examination. In day 1 there is a general mental ability test which consists of verbal and non-verbal reasoning and arithmetic. In this they have asked 90 questions from verbal and non-verbal, and the rest of the 60 questions are from the arithmetic. In this they considered only arithmetic. They don't ask questions from algebra and trigonometry. They consist the mensuration in this examination. They will provide you 150 questions and you have to complete in 3 hours. So after day 1 they will conduct another examination on day 2, which will current and general awareness, which consists of general knowledge, history, geography, polity, and Indian economy. In this, they have again asked you 150 question. Each question carries 2 marks. So the total is of 300. And thereafter, the another examination will be interactive communication English. In this, they ask 120 questions which consist 1 marks, and the another 180 will be in subjective. So the first 120 they will provide you 60 minutes for completion of first paper, which will consist of 120 question, or each question carries 1 mark, means 120 marks you have to complete in 60 minutes. After that they will provide you 30 minutes break, and after that they will give you another sheet of question paper which consists of subjective. In this subjective they will ask you essay writing, letter writing, comprehensions, and one more thing, they will give you 2 pictures and they will ask you to write your perception and a story on that pictures. So you have to well prepared about those pictures, or you have to practice how to write picture writing. Thereafter the next will be academic content test, which will consist of same 150 question and 300 marks. Each, each question will carry 2 marks, and this paper is divided into 3 portions. One is mathematics, second is humanities, third one is general science. So it will also give you 3 hours to complete the whole paper. So the whole examination will be of 120 marks, and if you want to clear ACC written examination, one thing is compulsory, you have to pass English examination first. So after that they will send you back, and after 1 to 2 months they will announce the written examination result. ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ACC रिटन एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चन पेपर के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो उसका सिलेबस कुछ ऐसा है कि ये 4 दिन 4 एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, 4 पेपर्स। तो उसमें फर्स्ट डे होता है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें होते हैं रीजनिंग के वर्बल और नॉन वर्बल और अरिथमेटिक का पोर्शन। इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 में से 90 क्वेश्चन होते हैं वर्बल और नॉन वर्बल के, और जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो अरिथमेटिक होता है। उसमें अरिथमेटिक के साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नहीं होते हैं, उसमें मेंसुरेशन क्वेश्चन होते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री कंसिस्ट नहीं करता है। और इसके बाद आपको इसमें दिए जाते हैं 150 क्वेश्चन करने के लिए 3 घंटे का समय, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, मतलब ये पेपर 300 मार्क्स का हो गया। इसके बाद दूसरा पेपर होता है आपका करंट एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें आपके आते हैं करंट अफेयर्स आते हैं इसमें।
इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी भी इसमें कंसिस्ट किया जाता है। तो हर एक पोर्शन को इक्वली डिवाइड किया जाता है और उसके हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होंगे, तो करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट 6 से 8 महीने का होगा, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि उनको अच्छे से पढ़ लिया जाए। और इसके बाद आता है आपका तीसरा पेपर, जो कि तीसरे दिन ही कंडक्ट होता है, जो कि है इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इसमें 120 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपके एमसीक्यू होते हैं, और 180 मार्क्स जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। ये जो 120 क्वेश्चंस होंगे, ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, इसके लिए 60 मिनट मिलते हैं। ये 60 मिनट का पेपर कंप्लीट होने के बाद 30 मिनट का एक ब्रेक मिलता है। 30 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा पेपर दिए जाते हैं। दोबारा पेपर 2 घंटे का सब्जेक्टिव होता है, जिसमें ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं। और जो कंप्लीट होने के बाद जो कि चौथा पेपर हमारा होता है, वो होता है एकेडमिक कंटेंट टेस्ट। ये एकेडमिक कंटेंट टेस्ट में होता है मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस जो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के बनता है, इसके होते हैं 50 क्वेश्चन, और ह्यूमैनिटीज़ जिसमें होती हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी वगैरह के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो ये हो गया 50 क्वेश्चन, मतलब 50 50 50 मिला के हो गया हमारे 150 क्वेश्चन को करने के लिए हमें सेम 3 घंटे का समय दिया जाता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल हमारा हो गया 300 गुना 4, मतलब 1200 मार्क्स का पेपर हो गया, जिसमें से कि इंग्लिश के पेपर में पास होना अनिवार्य है। आप इंग्लिश के पेपर में पास होंगे तभी आपका अगला पेपर चेक किया जाता है। तो ये हो गया एक कंप्लीट रिव्यू आपके एसीसी के रिटन एग्ज़ामिनेशन के पेपर के ऊपर। और एक सजेशन है कि जो सेकेंड डे का पेपर आता है, उस पेपर को सॉल्व कर लें चौथे दिन के एग्ज़ाम देने जाने से पहले, क्योंकि चौथे दिन वाले एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन उस पेपर से रिपीट होते हैं। मतलब करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाते हैं। तो एक बार उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है आप सेकेंड डे वाले पेपर में वो क्वेश्चन गलत करके आए हो और सॉल्व करने के बाद आपको सही दिख रहा हो, तो आपके चौथे दिन वाले पेपर में गलतियाँ नहीं होंगी। तो ये ओवरऑल एक व्यू था एसीसी रिटन एग्ज़ामिनेशन के सिलेबस के ऊपर। और हम अगले दिन पर्टिकुलरली एक एक क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे, या फिर एक एक सब्जेक्ट के ऊपर पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।